So very good afternoon to all of you all. Hello everyone, how are you all? I hope I'm audible as well as visible. Jai Jinein Manoj, Jai Jinein. Huzefa. Okay. आज मैंने ऑफिशियल चैट ओपन नहीं की है, तो मैं कहां पे चैटिंग कर रही हूं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच. ऑफिशियल चैट ग्रुप कौन सा है यार? एक तो इतने सारे ग्रुप्स हैं, आई गेट सो कंफ्यूज्ड. Is it this one? Is this the official group? I have just sent a message on the other group. Just let me know if that is the official group. Okay. Fine. Okay, so I'll just turn off the chat in this group and I'm turning on the chat in the other group. Okay, wonderful. Chalo, best ho gaya. So very good afternoon to all my dear friends. How are you all? So I think till now I have taken 9 lectures and today's lecture would be my 10th lecture. Okay. और मेरे साइड से 2 लेक्चर्स को अपलोड होना पेंडिंग है. दैट इज द लेक्चर ऑफ 11th जून एंड 15th जून, जिसको मैंने अपलोड करने के लिए ऑलरेडी रख दिया है. तो मुझे लगता है आज क्लास खत्म होने के पहले दीज लेक्चर्स विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर एप्लीकेशन. सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड वॉचिंग दोज लेक्चर्स, यू कैन वॉच इट आफ्टरवर्ड्स. ओके, तो चलो आ जाइए. Yesterday we had started with a new topic relating to offer. So right now what am I going to do is I am going to turn off the chat and I'm going to teach you all this topic of offer, after which I will be turning on the chat for your questions and my answers. अगर आपको याद होगा, offer एक तो positive act के लिए हो सकता है and an offer can also be for a negative act. तो say for example अगर मैं आपसे पूछती हूँ, या जैसे उस दिन आरके ने पूछा था दीपिका को, will you marry me, या मैंने आपको पूछा कि क्या आप ये आईफोन मुझसे 90,000 में खरीदना चाहते हो, ये जो ऑफर मैंने आपको दिया था, दिस ऑफर वाज अ पॉजिटिव ऑफर, इट वाज टू डू समथिंग. बट एक साइड पे जहां पे ऑफर कुड बी फॉर doing something, for a positive act, it could also be for a negative act. So an offer can also be for a negative act. जैसे कि कल अपने टॉम एंड जेरी वाले एग्जाम्पल में देखा था, जहां पे हमने कहा था एज अ डेटर कि आप मेरे अगेंस्ट 6 महीनों के लिए केस फाइल मत करना, जिसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा. तो यहां पे ये जो एडिशनल 10,000 रुपीज दिए जा रहे हैं एज कंसिडरेशन इज for not doing something, is for a negative act. Okay, lawmakers ने दोनों भी चीजों का लाभ किया है. lawmaker ने कहा whether the offer is positive or negative will not make a difference, both kinds of offers will be considered as valid in the eyes of law. साथ साथ में कल हमने ऑफर्स के टाइप्स को भी देखा था. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर? ऑफर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. अ जनरल ऑफर, an offer that is open to the public at large is known as a general offer. So anyone who is desirous to can accept such an offer. Such an offer is known as a जनरल ऑफर. इसी में हमने एक केस लॉ भी देखा था और इसी केस लॉ का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस. यस और नो गाइस? यस.
Along with that, we also saw what do you mean by a special offer. So an offer that is made to a certain person or a certain group of persons is known as a special offer. जिसको ये special offer दिया गया है वही ये person उस offer को accept कर सकता है, उसके अलावा nobody can accept such a offer. ऑफर के बदले में ऑफर जब कभी भी आता है इज नोन एज अ काउंटर ऑफर, जिसके लिए मैंने बार्गेनिंग का एग्जाम्पल दिया था. क्रॉस ऑफर, when two identical offers cross each other, obviously in ignorance of the other's offer, such offers are known as cross offers. ये चीज हमेशा याद रखना, इसने भी ऑफर दिया है और उसने भी ऑफर दिया है जो एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, और क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. Only after you get the acceptance, we can enter into a valid contract. And the last kind of offer is a standing offer. An offer that remains valid for a particular period of time is known as a standing offer, is also known as an open offer. तो जो नाम आपको इसे देना है आप उसे दे सकते हो. यस और नो गाइस? यस. अब हम लोग आ रहे हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट पे. आई एम ऑन पेज नंबर 13. आई एम स्टिल कीपिंग द चैट off because now you all are going to sit straight like good children and you all are only going to listen on what I'm going to teach you all right now. After each concept gets over, I will be turning on the chat for our discussion. Okay, आ जाइए. पेज नंबर 13, essentials of a valid offer. अगर आप चाहते हो कि आपका ऑफर वैलिड रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑफर जो है वो वैलिड रहे, such an offer must be capable of creating a legal obligation. तो आप लोग जानते हो ये चीज तो हम लोग डे 1 से देखते आए हैं. You all know an agreement enforceable by law is known as a contract. Agreement enforceable by law. Enforceable by law. So there should be an intention to create a legal obligation. अगर आपने आपके दोस्त को चाय पे बुलाया है, याद कीजिए कटरीना जी ने सलमान जी को चाय पे बुलाया था, आपके पापा ने वरुण को शादी में बुलाया था आपकी बड़ी बहन के साथ साथ में, विराट ने ऑफर दिया था अनुष्का को डायमंड रिंग देने का आज शाम को. अब ये ऑफर जब दिया गया था, देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन. आपका इंटेंशन या तो सोशल था या तो डोमेस्टिक था. अगर आपका इंटेंशन लीगल था ही नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का था ही नहीं, कैन दिस ऑफर be constituted as a valid offer in order to create a contract? So the answer to this question is no. हाँ, ऑफर को अगर एक्सेप्टेंस मिल जाता है, अग्रीमेंट जरूर बन जाती है, बट अगर लीगल ऑब्लिगेशन लैकिंग है, आपका ऑफर cannot constitute into a valid contract. It will remain as an agreement and it will never ever turn into a contract. तो अगर आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, आपका ऑफर वैलिड होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस वैलिड होना चाहिए, और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आपका है एक लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का इरादा. So now your offer must be such that it is capable of giving rise to legal relationship. Otherwise, my dear friends, your offer will get acceptance and will remain as an agreement, will never ever get converted into a contract. आगे वही चीज लिखिए. If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relations, it is not considered as a valid offer in the eyes of laws. जैसे कि a social invitation, even if it is accepted, does not create a legal intention because it is not so intended. तो अगर आप चाहते हो कि आपका ऑफर में इतना दम रहे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके, मेक इट श्योर दैट दिस ऑफर इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन. सो ये पॉइंट तो हम लोग डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं. आई डोंट थिंक सो यू माइट बी हैविंग एनी डाउट इन पॉइंट नंबर 1. सो आई एम कीपिंग द चैट ऑफ. लेट अस मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2. ये भी हमने
हमने पहले वीक ही किया है. द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड इट शैल नॉट बी वेग. वेग ये शब्द को मैंने आपको समझाया था. वेग मीन्स समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, समथिंग दैट इज अनक्लियर. वेग इस शब्द का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट इज नॉट क्लियर मीन्स इट इज वेग. तो जब कभी भी आप ऑफर देते हो, जब कभी भी आप ऑफर देते हो, मेक इट श्योर योर ऑफर इज क्लियर एंड इट इज नॉट वेग. ओके, क्योंकि अगर आपका ऑफर वेग है, इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. It will not create any contractual relationships. Say for example, I already gave you this example. I'm repeating that example so that the point clicks to you, okay? And it should click. अगर click नहीं हो रहा है, there is some problem. You are not listening to me efficiently. जितना आपको सुनना चाहिए. मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं किराना की दुकान में जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि भैया मुझे 1 लीटर ऑफ ऑयल दीजिए. भैया गिव मी 1 लीटर ऑफ ऑयल. अब जब मैंने ये ऑफर दिया कि भैया आई वॉन्ट टू परचेज 1 लीटर ऑफ ऑयल, माई ऑफर इज वेग, माई ऑफर इज वेग, इट इज नॉट क्लियर. Because now we don't know whether I want cooking oil, whether I want hair oil, whether I want motor oil. So my offer is vague. And if it is vague, it will not have the capacity to create any contractual relationship. मेरे को स्पेसिफिकली बोलना होगा, भैया गिव मी 1 लीटर ऑफ जेमिनी कुकिंग ऑयल. अब ये ऑफर मेरा क्लियर है, डेफिनेट है, एंड देन ही विल गिव मी दैट 1 लीटर का पैकेट ऑफ जेमिनी कुकिंग ऑयल which will relate to acceptance and will turn into a contract. हाँ, but इसमें मैं एक twist लाना चाहती हूँ. Say for example, I will turn on the chat. I'm just asking you the question time. Suppose, say for example, I go to a dealer who is only dealing in cooking oil. एक ही category का cooking oil में वो deal करता है. Say he only deals in sunflower cooking oil. एक ही category के cooking oil में वो deal करता है. और मैं उसके पास जाती हूं और मैं उनको पूछती हूं कि भैया प्लीज मुझे 1 लीटर ऑयल देना. मैंने तब भी यही कहा था कि भैया मुझे 1 लीटर ऑयल देना. मैं अब भी यहां पे भी कह रही हूं कि भैया मुझे 1 लीटर ही ऑयल देना. बट नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द सिचुएशन. वहां पे आई हैड गॉन टू अ किराना दुकान जहां पे सारे टाइप्स ऑफ ऑयल्स मिल रहे थे. But यहाँ पे this dealer only deals in one specific kind of oil. So question to you is, when I go to this dealer and I tell the dealer कि भैया please give me 1 liter of oil, क्या मेरा ऑफर वेग है या क्या वो क्लियर है? बोलो, क्या मेरा ऑफर वेग है या मेरा ऑफर क्लियर है? क्या बात है. आई थिंक एवरी वन ऑफ यू ऑल हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. मतलब यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू ऑल. वंडरफुल. सो यस, whatever you have said is perfectly correct. This offer will not be vague. It is clear. Why is it clear? Because now और कुछ ऑयल का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है. वो पर्सन एक ही ऑयल में डील कर रहा है. तब उस केस में ऑफर भी वैलिड है एंड एक्सेप्टेंस भी वैलिड होगा, विच विल रिजल्ट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वंडरफुल. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2. वेरी गुड. आज एकदम अच्छे बच्चों की तरह आप लोग बिहेव कर रहे हो. दैट्स अ नाइस थिंग. सो यू ऑल आर लर्निंग हाउ टू बिहेव इन अ प्रोफेशनल मैनर. दैट्स नाइस टू सी. ओके. थर्ड पॉइंट नंबर 3. It must be communicated to the offeree. This point is a very, 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 very important point. आ जाइए. अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, it cannot be regarded as an agreement that you have made. Okay. I think यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है मैंने.
ठीक है. So the offer must be communicated to the person to whom it is made. Otherwise there is not going to be any acceptance to it. देखो acceptance कब मिलेगा? जब ऑफरी को पता होगा ना कि उसको ऑफर दिया गया है. अगर उसे पता ही नहीं है कि उसको ऑफर दिया गया है, कैन वी मेक एन एक्सेप्टेंस टू सच एन ऑफर? नो माय डियर फ्रेंड्स. देन इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर that you are not known about. Getting this or no, my dear friends? एक बहुत फेमस केस लॉ है जो कल मैंने आपको कट करवाने लगाया था ना. देखो यहां पे मैंने आपको कट करवाने लगाया था. लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. Why did I make you all cut that particular point? Because it is getting repeated over here. And by the way, this case law is a very important case law. What is the name of this case law? सब लोग मेरे साथ repeat करोगे like good children. Come on, tell me. लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. क्या है केस लॉ का नाम? चलो सब लोग बोलो तो मेरे साथ. लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. क्या हुआ था इस केस में? लेट मी टेल यू. देयर वाज दिस लेडी गौरी दत्त. Unfortunately, what happened is her nephew went missing. Her nephew went missing. गौरी दत्त का nephew जो है, he went missing. So she announced to all her servants, okay, जो घर पे उस टाइम मौजूद थे. She announced to all her servants कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आता है, जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आता है, आई विल गिव अ रिवॉर्ड टू दैट पर्टिकुलर सर्वेंट. और जिस से फॉर एग्जाम्पल उस टाइम 3 नौकर वहां पे थे. अब इत्तेफाक की बात ऐसी थी, जो नेफ्यू था ही वॉज ऑन द रेलवे स्टेशन, ओके, एंड उसी समय पे वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गौरी दत्त वॉज ट्रेवलिंग टू हिज विलेज एंड दस ही वॉज ऑल्सो ऑन द रेलवे स्टेशन. एंड इसी नौकर का नाम था शुक्ला जी, लालमेन शुक्ला. ओके, तो शुक्ला जी इस नौकर का नाम था. और उन्होंने देखा ना कि हमारी मालकिन का जो नेफ्यू है वो तो रेलवे स्टेशन पे भटक गया है. और शुक्ला जी क्या करते हैं, उस भांजे को लेके आ जाते हैं गौरी के पास. ओके, अब देखो एकदम ध्यान से सुनना, यहां पे क्या हुआ है. जब गौरी ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी अपने सर्वेंट्स को कि जो भी पर्सन, जो भी सर्वेंट मेरे भांजे को मेरे पास ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगी. दैट टाइम शुक्ला जी वॉज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर बिकॉज वो छुट्टी पे थे. ही वॉज सपोज टू गो टू हिज विलेज टुडे एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही वॉज देयर ऑन द रेलवे स्टेशन. एंड इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि उसको वो भांजा रेलवे स्टेशन पे भटका हुआ मिला. एंड ऑब्वियसली मालकिन का भांजा है तो मॉरली इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ही ट्रूली फुलफिल्ड एंड ही escorted this particular child to her मालकिन, that is गौरी जी. और फिर गौरी जी के पास लेके उस नेफ्यू को दे दिया. एंड देन ही वेंट अगेन to wherever he was traveling. So he went back to the railway station. But while traveling back, the other servants told him ना, शुक्ला जी को बाकी के नौकरों ने कहा, अरे तेरा रिवॉर्ड तो लेते हुए जा. तो ये कहता है कौन सा रिवॉर्ड, मेरे को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है. फिर बाकी के सर्वेंट्स उसको बताते हैं, अरे मालकिन ने अनाउंस किया था ना कि जो भी मेरे भांजे को मेरे पास लेके आएगा उसको मैं ये अमाउंट का रिवॉर्ड दूंगी. सो अब तू वो भांजे को लेके आया तो गिव द रिवॉर्ड, टेक द रिवॉर्ड फ्रॉम गौरी. सो ही आस्क्ड फॉर द रिवॉर्ड टू गौरी फॉर फाइंडिंग द नेफ्यू एंड रिटर्निंग हर नेफ्यू टू हर. तो गौरी जी डिनाइड टू गिव द रिवॉर्ड. एंड बिकॉज गौरी जी डिनाइड टू गिव द रिवॉर्ड, अब आप देख सकते हो, देखो केस लॉ का नाम क्या है, लालमेन शुक्ला. शुक्ला जी filed a case against Gauri and that is why the name of the case law is Lalmen Shukla versus Gauri Dutt. Now the question to you is, think and tell me. Okay, think and tell me. हो सकता है आपका जवाब गलत भी हो, will not make a difference. You tried is making a difference. Okay, क्या शुक्ला जी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों हाँ, और अगर ना तो क्यों ना? What do you think? Come on, tell me.
सो यश कह रहा है मैम उसको नहीं मिलना चाहिए. माहेश्वरी जी कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए. खुशी कह रही है नो. दृष्टि कह रही है नो. Aparajit, I don't know. Did I pronounce your name properly? I'm not quite sure. Just correct me if I'm wrong. Aparajita कह रही है नो. सोनम कह रही है नो. फैजल कह रहा है नो. प्रिया नो. श्रेया, क्षिति, किशन, संस्कार, कृति, विशु, संजना, इनफैक्ट आई थिंक एवरीवन. ओम. बट किसी ने रीजन ही नहीं कहा है. हाँ, सानिया ने सबसे पहले आंसर के साथ रीजनिंग कहा है. देयर इज नो कम्युनिकेशन एज ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर. और अगर उस पर्सन को ऑफर के बारे में कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, दे कैन बी नो एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर विच इज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू यू. सो वेरी गुड सानिया अली, वेरी गुड. नो. अच्छा, आराध्या ने भी कहा है. क्या बात है. आराध्या भी कह रही है कि नो मैम एज ही डिडंट नो अबाउट द ऑफर. क्या बात है. चरवी भी कह रही है he was not entitled to the reward because he did not know about the offer. क्या बात है यार, होशियार बच्चे हो आप लोग सब. So yes, I think every one of you all, almost every one of you all, 95% of you all have given me the correct answer. जिनका गलत जवाब आया है, जिन्होंने yes कहा है, let me tell you why you all are wrong, okay? The answer to this question is Shukla ji is not entitled, legally not entitled to get the reward. देखो, morally is he entitled to get the reward? Morally I can say yes. मतलब अगर मैं गौरी की जगह पे होती, I would have surely given the reward to Shukla ji also. So morally the answer is yes, but we are not looking into morals. We are looking into the law. Legally, my dear friends, Shukla ji is not entitled to get the reward. Why is he not entitled to get the reward? Because, my dear friends, जब reward के बारे में announce किया गया था, that time he was not present. So basically he was not aware about the offer. And if you are not aware about the offer, इफ ही इज नॉट अवेयर अबाउट द ऑफर. माहेश्वरी जी का सब लोग आंसर कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? An offer that is being not communicated to you cannot be accepted. So he could not claim it as he did not know about the offer. Getting this or no, my dear friends? Yes. I told you all yesterday, even if the lecture is lagging for a second or two, just bear with it. क्योंकि नेट फ्लक्चुएट होते रहता है. वी आर स्टेइंग इन इंडिया. वी डोंट स्टे इन द यूनाइटेड किंगडम और इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर देयर इज अ ग्रेट नेटवर्क दैट इज अवेलेबल. So you have to be a little patient, okay? Is it working properly now? It has to be communicated by the offeror to the offeree, only after which the offeree can accept that offer. Okay, चलो आ जाइए. So yes, India is a developing country, you all know that, and we are still into all these, we are just started to get into all these things. So you all know that इतने कुछ wonders नहीं है relating to connectivity. Even communication and the telecom sector is still developing in India,
है ना. सो इट्स गोना टेक टाइम, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. मेरे हाथों में नहीं है कोई चीज, मैंने तो ये चीज बनाई नहीं है. सो थोड़े सेकंड्स के लिए लैग होता है, जस्ट बेयर विथ इट. आप लोगों के इतने मैसेजेस आना चालू हो जाते हैं. हाँ, अगर ब्लैक स्क्रीन आ रही है या तो फिर कभी कभार यू नो इवन आई डू सम सिली मिस्टेक, आई टर्न ऑफ द माइक एंड आई स्टार्ट टीचिंग, ऐसा कुछ है तो यू कैन टेल मी अबाउट इट. ओके, इफ द मिस्टेक इज फ्रॉम माई साइड. अदरवाइज आई थिंक लैग होता है, इट्स जस्ट अ सेकेंड और अ टू. उसमें इतने रेस्टलेस मत हो जाओ. ठीक है, ठीक है. लैपटॉप चार्जिंग पे डालती हूँ बेटा. थैंक यू. अगर ऑफर ही किसी और को ऑफर के बारे में कम्युनिकेट करता है तो भी ये बात नहीं चलेगी. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पेशल ऑफर दैट शी गेव टू द सर्वेंट्स दैट वर प्रेजेंट इन द हाउस एट दैट टाइम, है ना. ओके, नेक्स्ट. आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ द चैट नाउ बिकॉज यू आर गोइंग ऑफ ट्रैक और आप लोग इंडिया के इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड बात करना चालू कर दिए हो. ठीक है, नेक्स्ट. इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू. आप कोई भी टॉपिक से बात कर सकते हो ना, मतलब कुछ भी सिली से सिली टॉपिक क्यों ना हो, आप लोग बातें कर सकते हो ना. मतलब इवन दिस इज एन आर्ट. नेक्स्ट, इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट. एसेंट मतलब कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी. सो देखो, ऑफर जब कभी भी आप देते हो, ऑब्वियसली आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस पाने का. जब कभी भी ऑफर आप देते हो, आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस पाने का. अगर आपका इंटेंशन एक्सेप्टेंस पाने का नहीं है, इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफर दैट यू हैव मेड. सुनो मेरे शब्दों का, ये सारे शब्दों का खेल है. जैसे मैं आपको कह रही हूं कि मैं सोच रही हूं कि मैं ये फोन किसी को 90,000 में बेच दूं. मैं सोच रही हूं कि मैं अपना ये फोन 90,000 में बेच दूं. मैं सोच रही हूं कि मैं अपना ये फोन 90,000 में बेच दूं. इफ यू हैव लिसन टू वट एवर आई हैव सेड राइट नाउ, यहां पे आई हैव नॉट मेड एन ऑफर टू सेल यू माई फोन फॉर 90,000 रुपीज. I have not made an offer to sell you my phone for 90,000 rupees. मैंने सिर्फ इंटेंशन आपको बताया है कि मैं सोच रही हूं कि मैं ये फोन को बेच दूं 90,000 रुपए में. I just expressed my intentions to you. I did not make an offer to you. Try to understand this. This is exactly what this point number 4 is talking about. Point 4 कहता है, अगर आपने ऑफर दिया है मतलब आपका इंटेंशन जो है वो दूसरी पार्टी का कंसेंट पाना है. ऑफर के बदले में एक्सेप्टेंस विच विल मेक इट अ अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, विच विल टर्न आउट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर मैं कहती हूं मैं सोच रही हूं मैं अपना फोन 90,000 में बेच दूं, I did not intend to get your acceptance. I just expressed what I was thinking. This expression cannot be regarded as an offer that I have made. Okay. So I think you should not be having any doubts in this. I'm moving on ahead. An offer may be conditional. An offer may be conditional. An offer may be conditional. So yes, my dear friends, you can make an offer which is subject to certain terms and conditions. It is allowed in the eyes of law. You can, okay, make an offer which is subject to certain terms and conditions. Say for example,
बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको भी आएंगे लेटर ऑन, आई विल टर्न ऑन द चैट, तो आप भी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में सोचो एंड देन यू विल राइट इट टू मी. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल फॉर ऑल द गर्ल्स ऑफ माई क्लास. ओके गर्ल्स, ओनली द गर्ल्स विल आंसर. नेक्स्ट पॉइंट के लिए द बॉयज विल आंसर, क्योंकि आप लोग इतने सारे जवाब देते हो ना, आई एम नॉट एबल टू रीड योर आंसर्स. इतनी फास्ट 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 वो चैट ऊपर चले जाती है. आई स्किप ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द आंसर्स. इसीलिए ये एग्जाम्पल सारी गर्ल्स देगी, उसका अगला जो पॉइंट है सारे बॉयज देंगे. ओके, सो वी विल कीप ऑन फ्लिपिंग दोज पर्टिकुलर answers. So suno, all the girls, okay, keep in mind an example for point number 5. First I will explain it and then examples will automatically click to you and then you can write it to me. सुनो ना, lawmakers कहते हैं अगर आप चाहते हो आपका ऑफर कंडीशनल रख सकते हो. अगर आप चाहते हो आपका ऑफर जो है कंडीशनली रख सकते हो. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ हाउस, अ फ्लैट विच आई वॉन्ट टू गिव ऑन रेंट. I have a flat which I want to give on rent. I have a house which I want to give on rent. But अब मैंने कहा है मेरे ब्रोकर को कि भैया अगर आप मेरा घर रेंट पे दे रहे हो, प्लीज गिव दिस हाउस ऑन रेंट ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली. तो पहली बात तो फैमिली होना जरूरी है. आई डोंट वांट बैचलरेट्स एंड प्लस दिस फैमिली हैज टू बी अ वेजिटेरियन फैमिली. मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरा मन कि मेरे को किसे मेरा घर रेंट पे देना है और मुझे किसे मेरा घर रेंट पे नहीं देना है. आई कैन हैव माई ऑफर विच इज कंडीशनल इन नेचर. आप शॉपिंग करने जाते हो, से आप शॉपिंग करने गए जारा में, जारा इज अ ब्रांड, जारा में लिखा है फॉर एवरी 4 शर्ट्स यू बाय 5th यू विल गेट फ्री. ओके, वहीं पे H&M में लिखा है फॉर एवरी 3 शर्ट्स यू बाय यू विल गेट 1 फ्री. अब आप जारा वाले को नहीं बोल सकते हे जारा आप कितना अनफेयर डीलिंग कर रहे हो, वहां पे देखो 3 पे 1 मुफ्त है, आपके क्यों 5 पे 1 मुफ्त है, आप गलत कर रहे हो, बहुत नाइंसाफी है. कैसा होगा? उनकी दुकान, उनकी मर्जी, उनका मन. और कुछ कंपनीज ऐसे है जो से फॉर एग्जाम्पल फॉरएवर न्यू या मैंगो, वो लोग ऑफर दे ही नहीं रहे, उनकी मर्जी. अगर वो चाहे वो दे, ना चाहे तो ना दे. कैसा ऑफर दे रहे हैं वो भी उनकी मर्जी है. 1 पे 1 मुफ्त, 5 पे 1 मुफ्त, 2 बाय करो तो तीसरे पे 50% ऑफ. सो बेसिकली अगर आप चाहो तो आपके ऑफर को रख सकते हो विच मे बी कंडीशनल, मीन्स सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. और अगर आपको कोई कंडीशंस ना रखने हैं, आप ना रखो. मैंने ब्रोकर को दिया, आई एम ओपन फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ फैमिलीज, बैचलर्स, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. तो ऐसा भी हो सकता है. दैट इज माई विश, इट्स माई हाउस. Okay, getting this or no? So if you wish to, you can have a conditional offer, and if you wish to, you may not have a conditional offer as you wish to. So come on, girls. Practically, can you all think and tell me of offers that you all have seen which are conditional in nature? All the girls are supposed to answer now. Okay. Okay. तो सानिया कह रही है आई एम हैविंग अ बिजनेस एंड विल एक्सेप्ट कैश ओनली and will accept the payment only through debit or credit card. Okay, good. If you want to purchase this house, you have to pay advance first. Advance हो सकता है 1 lakh rupees, 5 lakh rupees. Very good. Discount आपको मिलेगा only if you purchase through HDFC debit card. क्या बात है? I sell you this phone on a guaranteed period of 1 year on the terms that the phone has not been misplaced. Okay. म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, इंश्योरेंस में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. ओके, दिस याशना कह रही है ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते हो दिस विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 1 लाख. मैं अपनी तानिया कह रही है मैं अपनी कार बेचूंगी बट यू हैव टू गिव मी कैश पेमेंट. ओके, सो अच्छा, दिस पीजी दैट आई एम गिविंग इज ओनली फॉर गर्ल्स. ओके,
फ्री शेकर विथ कॉफी पैकेट ऑफ ओनली 1 kg. यस, तो अगर आप छोटे सैशे बाय करते हो तो फिर आपको वो शेकर फ्री नहीं मिलेगा. क्या बात है. I want to give my house on rent, but only for family, not for students. Okay. Paytm offers cashback on only certain payments. Okay. अगर आप 5,000 से ज्यादा खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. Okay. $399 का रिचार्ज करोगे तो सब्सक्रिप्शन फ्री. अच्छा, किसी ने कहा है, गुप्ता जी कहती है, माई पेरेंट्स विल बाय मी अ न्यू आईफोन ओनली इफ आई पास माई सीए फाउंडेशन. ओके फाइन, दिस इज एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस. इट विल बी एन अग्रीमेंट बट दिस विल नॉट टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस, राइट? बिकॉज देर इज नो लीगल इंटेंशन. ठीक है. Clubhouse can be rented only to the club members. Very good. So I think many of you all have given me the answers. Oh my God, so many students. Actually, अभी next time से मुझे क्या करना पड़ेगा? कितने बेशरम आप लोग. स्वप्निल सर will give Ankita ma'am a new dress if she makes pizza in the dinner. मतलब कैसे हो रहे तुम लोग, बेशर्मो. सुनो ना, ऑलमोस्ट सो मेनी गर्ल्स इन दिस क्लास ऑल्सो. इतने सारे आंसर्स आ गए. अभी नेक्स्ट टाइम मुझे अल्फाबेट्स के हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा. ऑल दोज स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद ए विल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऐसा करना पड़ेगा मुझे. चलो. सो यस, वेरी गुड. शॉप अबव 5,000 एंड गेट होम डिलीवरी फ्री. ओके, सो नाइस. So good. So you all have understood this concept that if I am just turning off the chat, अभी आप लोग हमारे मजे लेना बंद करो. ये मैं इस क्लास की टीचर हूं, मुझे इज्जत दो. ठीक है. ऐसे नहीं कर सकते हो आप लोग, बेशर्मो. आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे. So I think you have understood this particular point number 5 very nicely. Let's move on to point number 6. Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Okay. So now आपका ऑफर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया हम मानेंगे कि आपने हाँ कह दिया है. ऐसी चीज अलाउड नहीं है. तो जैसे कि आई टेल यू, क्या आप मेरी ये स्टाइलिश पेन 5,000 में खरीदना चाहते हो? एक हफ्ते में मुझे इस चीज का रिप्लाई दो. ओ माय गॉड, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया मैं अज्यूम करूंगी कि आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है. अब ऐसा ऑफर जब मैं करती हूं, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर. ओके, माई साइलेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज माई एक्सेप्टेंस. ओके, वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय अ सर्टेन टाइम the offer will be considered as accepted. अगर आपने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया एक हफ्ते के अंदर, मैं मानूंगी आपने हाँ कह दिया है. ऐसा अलाउड नहीं है. तो देखो नीचे आपको एग्जाम्पल भी नजर आ रहा है. A proposes B to purchase his Android mobile for 5,000 and if no reply by him within a week, it would be assumed that B has accepted the proposal. This is not going to result into a contract. Okay, B हाँ बोलेगा या ना बोलेगा. उसने हाँ भी ना बोला, नहीं हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, then this cannot be considered as acceptance. Next, point number 7, which was already done yesterday. Offer can either be specific or it can be general. आप लोग जानते हो general means it is made to large group of persons, to the public at large. A specific offer is an offer that is made to a specified person or a specified group of persons. Point number 8 मैं हाईलाइट करना भूल गई. मैं एंड में पढ़ाने वाली हूं पॉइंट नंबर 8. एंड पॉइंट नंबर 8 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. पॉइंट नंबर 8 that I will do in the end. First come to point number 9.
An offer may be expressed or it may be implied. Okay. So now you can either give an offer which is express. Express matlab words are used. You can express either orally or in writing. Express matlab शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. Implied मतलब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. तो जैसे कि say for example नाउ इम्प्लाइड ऑफर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि a coolie came and he picked up your luggage. Okay, a coolie came and he picked up your luggage and you did not say no to him. So basically now, without speaking anything, by his conduct when he picked up your luggage, we came to know that he has given an offer to provide services to you. उसके हरकतों से हमें समझ में आया है कि उसने हमें एक ऑफर दिया है. Such an offer is an implied offer. So can the boys of the class give me examples of implied offer? जहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है. इम्प्लाइड ऑफर का क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो? ऑल द बॉयज. Okay. ATM, ऑटो रिक्शा, डाइनिंग इन दी होटल, वेरी गुड. कूली तो मैंने ऑलरेडी कह दिया है. टेकिंग अ रिक्शा, ATM, कूली, ऑटो, आई थिंक बस सर्विस. ओके. Sweeper cleaning the streets, very good. Boarding a bus. खांजन शाह, बहुत इमोशनल हो रहे हो आप, संभालो अपने आप को. ओके ठीक है. टैक्सी, बस, रिक्शा, फाइन. कूली, एटीएम, पार्किंग सर्विस, ओके. रेस्टोरेंट में जाना, सिग्नल पर साफ करने वाला बच्चा, टेक्स्ट बुक में देख के जवाब मत दो. ठीक है. I think you all are all running behind these 3-4 examples only. तुम लोग क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? आई प्रेस द फीट ऑफ माई मॉम एंड शी नोज दैट आई नीड समथिंग. मुझे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल दो, सोशल और डोमेस्टिक नहीं. ठीक है. चलो ठीक है. ग्रेट. सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. अच्छा, पानी पूरी वाले भैया के पास चले गए और लाइन में खड़े रह गए तो ठीक है. इट्स एन इम्प्लाइड ऑफर दैट यू वांट टू ईट सम पानी पूरीज एंड आफ्टर यू ईट द पानी पूरी यू विल हैव टू मेक द पेमेंट. वेरी गुड. ठीक है. चलो. सो आई थिंक you all have all made implied offers or you all have accepted implied offers. So I don't think so there should be any doubt in this point also. So we are remaining only with 2 points.
and that is point number 8 and point number 10, which are interlinked to each other, which is talking about an offer is different to an invitation to an offer. सुनो ना मेरी बात. This point number 8 is a very important point. So now I want every one of y'all to please pay attention. Writing के लिए मैं बाद में आप लोगों को समय दूंगी, पहले आप इस एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है? An offer is different from an invitation to an offer. An offer is different from an invitation to an offer. So look, आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में सुना होगा that this company, a particular company, is coming with a public issue. Oh my God, ये स्टाइलिश गिरने के बाद बंद हो गई क्या? आपको जब एग्जाम्पल दे रही थी तब गिर गई थी मेरे हाथों से. अब इस गरीब का क्या होगा? Oh my God. Oh. एग्जाम्पल भारी पड़ गया. Oh my God. ओके आप लोगों ने, आई डोंट नो व्हाट वाज आई सेइंग, मेरा माइंड थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब हो गया था. सुनो, बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा या आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि कंपनीज कम अप फॉर अ पब्लिक इशू. तो कंपनीज क्या करती है? पब्लिक के पास आती है, कहती है हे पब्लिक, अगर आप चाहते हो आप कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीद सकते हो एंड वी विल गिव यू द सिक्योरिटीज अकॉर्डिंगली. अब देखो, यही पब्लिक के पास जब कंपनीज जाती है, मतलब कंपनी अगर पब्लिक के पास जाती है, इट इश्यूज अ डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज अ प्रोस्पेक्टस. कंपनीज issue a document which is known as a prospectus, which is known as what? Come on, tell me guys. Known as a prospectus. और इसी प्रोस्पेक्टस में कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है, जैसे कंपनी का नाम, वो कब इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी पैसे क्यों रेस करना चाहती है, कंपनी जो पैसे रेस कर रही है क्या वो शेयर्स के रूप में है, डिबेंचर्स के रूप में है, अगर शेयर्स है तो ये शेयर्स के टर्म्स क्या है, आधे इक्विटी आधे प्रेफरेंस, अगर वो प्रेफरेंस है तो कब रिडीमेबल हो गए, उनका डिविडेंड का अमाउंट क्या है, अगर वो डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट का क्या रेट है, क्या ये सेमी एनुअली पे किया जाएगा इंटरेस्ट या एनुअली पे किया जाएगा, क्या डिबेंचर्स सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, रिडीमेबल है, परपेचुअल है. ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं इस डॉक्यूमेंट पे विच इज नोन एज अ प्रोस्पेक्टस. जैसे जब 11th में आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, ओके,
तब आप 2-3 कॉलेजेस में गए होगे एंड यू वुड हैव गॉट द प्रोस्पेक्टस, जिसको हम ना लेमन लैंग्वेज में ब्रोशर कहते हैं। उन कॉलेजेस का आपने ब्रोशर लिया होगा और फिर आपने डिसाइड किया होगा कि आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज सूटेबल है। सो यू विल कंपेयर एंड कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही है कॉलेज, कितने रैंकर्स आए हैं इस कॉलेज में से, टीचर्स कौन कौन है, हम तो सिर्फ देखते हैं अटेंडेंस कंपलसरी है या नहीं है ना, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट यू डिसाइड द कॉलेज, राइट। तो ये जो कॉलेज का ब्रोशर है उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं बोलो तो बच्चों, प्रोस्पेक्टस। सो नाउ कंपनीज क्या करती है, पब्लिक को इशू करती है प्रोस्पेक्टस। कंपनीज क्या करती है, पब्लिक को इशू करती है प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी से रिलेटेड और ये ऑफर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिखी होती है। सो बेसिकली दिस डॉक्यूमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एट लार्ज। दिस डॉक्यूमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एट लार्ज so that the other party is moved on to make an offer। तो आप समझो हजारों लाखों लोगों को ये प्रोस्पेक्टस दिया जाता है और अब ये लाखों लोगों में से कुछ हजारों लोग इन कंपनी के शेयर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड है। इन हजारों लाखों लोगों में से अब कुछ लोग जो है वो इंटरेस्टेड है टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। और फिर वो क्या करते हैं, इसी प्रोस्पेक्टस में देयर इज एन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, जिसको वो फिल इन करते हैं और कंपनी को सबमिट करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस कंपनीज को रिसीव होते हैं, बट नाउ हमने जो ऑफर दिया था, बेसिकली हमने जो इशू किया था, इस फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट से हो सकता है, इट कुड बी फॉर 100 lakhs। उसी के हिसाब से फिर अलॉटमेंट किया जाता है। तो कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट हो गए, कुछ लोगों को अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो 3 चीजें हुई है। सबसे पहले कंपनी पब्लिक एट लार्ज को प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिस प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है रिलेटिंग टू द कंपनी। उसी के बाद इन सारे लाखों लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड है कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो कहते हैं वी वांट टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, और हम इतने शेयर्स, 10 शेयर्स, 100 शेयर्स, 100 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, 500 शेयर्स खरीदना चाहते हैं। और फिर ये जो एप्लीकेशंस आते हैं उनमें से कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन 3 स्टेप्स में सबसे पहले जो हुआ है, दैट इज इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, इज नोन एज मेकिंग एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। Is making a what? Come on, tell me guys. Invitation to an offer. क्योंकि ये step में what do we do is we provide information relating to ourselves so that the prospective investor is moved on to apply for the shares of the company. जब ये पब्लिक में से कुछ लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तब हम कहते हैं that person is making an offer। और इन एप्लीकेशंस में से जब कुछ लोगों को अलॉटमेंट किया जाता है, वी से दैट वी हैव एक्सेप्टेड देयर ऑफर, वी हैव एक्सेप्टेड देयर ऑफर। सो इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इन्विटेशन टू एन ऑफर एंड एन ऑफर। इन्विटेशन टू एन ऑफर के बदले में जो मिलता है वो ऑफर होता है, और ऑफर के बदले में जो मिलता है दैट इज एन एक्सेप्टेंस। और ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही एक अग्रीमेंट बनती है, एंड इफ दिस अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट विल टर्न इनटू अ contract. So basically there is a thin line of difference between an invitation to an offer and an offer. तो देखो, an invitation to make an offer or to do a business. In case of invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer. He does not make an offer. Rather,
he invites the other party to make the offer. So what are we doing over here? By issuing the prospectus, we provide information to the public at large, जिसके वजह से now the public is moved on to make an offer. So his objective is to send out the invitation that he is willing to deal with any person who, on the basis of such invitation, is ready to enter into a contract with him subject to certain terms and conditions. तो invitation to offer के बदले में जो मिलता है वो है offer, और offer के बदले में जो मिलता है is an acceptance. देखो, जब हम ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं, जब हम ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट देते हैं इन द न्यूज़पेपर, तो हम कहते हैं इस तारीख को इतने बजे इस जगह पे ये चीज की नीलामी होने वाली है. हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया है कोई इवेंट का. दिस इज नोन एज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. उस एडवर्टीजमेंट को देख के बहुत सारे लोग उस जगह पे उस समय पे ऑक्शन के लिए आते हैं. अब जब वो बिडिंग करते हैं, बिड करना इज एन ऑफर, एंड स्ट्राइक ऑफ हैमर विल बी नोन एज एक्सेप्टेंस टू दैट ऑफर. तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना विल बी कंसिडर्ड एज अ इन्विटेशन टू एन ऑफर, जिसको देख के बहुत सारे लोग ऑक्शन के लिए आएंगे. जब वो बिड करते हैं, बिडिंग इज नोन एज एन ऑफर, और जब हैमर स्ट्राइक होता है इट विल बी नोन एज एन एक्सेप्टेंस टू दैट पर्टिकुलर ऑफर. ओके, गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो ना. एक केस में क्या हुआ था, मैं आपको बोलना चाहती हूं. ट्राई थिंक एंड गिव मी द आंसर. आई थिंक यू विल बी एबल टू गिव द आंसर. न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट डाली थी कि इस तारीख को इतने बजे ये चीज ऑक्शन होने वाली है. ओके, न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट डाला था. एक बंदा जो है दिल्ली से मुंबई आ गया ना इस ऑक्शन के लिए, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट. और जब वो उस तारीख को उस जगह पे गया, उसे पता चला कि ऑक्शन कैंसिल हो गया है. So he filed a case against the other person, कहते हुए कि देखो, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाला, मतलब आपने ऑफर दिया, मैं दिल्ली से मुंबई आ गया, मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, और अब आप कह रहे ऑक्शन कैंसिल हो गया, अब मुझे आप मेरे नुकसान की भरपाई करके दो. अब आप मुझे मेरे नुकसान की भरपाई करके दो. क्वेश्चन टू यू इज, जब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था, क्या वो ऑफर था या इनविटेशन टू ऑफर था? क्योंकि अगर आप कह रहे हो ऑफर था तो ये बंदे की बात सही है, और अगर आप कह रहे हो इनविटेशन टू ऑफर है तो ये बंदे की बात सही नहीं है. तो बताइए, आप लोग मुझे बताइए, इज इट एन ऑफर और इज इट एन इन्विटेशन टू एन ऑफर? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना रिलेटिंग टू एन ऑक्शन सेल, इज इट एन ऑफर और इन्विटेशन टू एन ऑफर? कम ऑन, टेल मी गाइस. So yes, very good. शशांक, मधुर, जतिन, अश्विन, करणदीप, क्या बात है. संजना, सोहम, प्रियांशी, पूनम, मानसा, सूर्य, अंश, इट्स लव, माहेश्वरी, अप्रिजता, अपराजिता. I don't know whether I'm pronouncing your name properly and I'm really very sorry अगर मैंने कुछ और pronounce कर दिया है. सृष्टि, अंकुश, अनिकेत, यशिका, विनोद, हर्षिता, मुस्कान, भानु, क्या बात है. So I think every one of you all have given me the correct answer. This is an invitation to an offer, and because it is an invitation to an offer, ये बंदे को उसके damages नहीं मिलेंगे. Okay?
किसी ने पूछा है, आकाश कहता है कूली ने जब सामान पिकअप किया हमने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, तो फिर ये तो वैलिड ऑफर नहीं होता है. सुनो मेरी बात, यहां पे ऑफर जो है इज एन इंप्लाइड ऑफर. ये जो मैंने बात की थी, साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू एन ऑफर, इज व्हेन यू एक्सप्रेस्ड योर ऑफर एंड यू सेड इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट इट वी विल कंसिडर एज इफ यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. वो चीज अलाउड नहीं है, दोनों अलग अलग है. आप अच्छे से सोचो, यू विल गेट द आंसर. गुड खाफसा, गुड. सो आई थिंक एवरी वन ऑफ यू ऑल, विराज, सुशांत, कृतिका, विशु, प्रीति, स्मृति, ठीक है, आप सब लोगों का जवाब जो है वो एकदम सही है. दैट दिस वॉज एन इन्विटेशन टू एंड ऑफर. अब एक आखिरी पॉइंट है एंड दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एंड ऑफर. दिस is connected to this point number 8 relating to invitation to an offer. जहां पे देखो आप सुपरमार्केट्स में जाते हो, खैर अभी तो सारे सुपरमार्केट्स बंद है, मॉल्स बंद है, बट प्रिज्यूमिंग सुपरमार्केट्स में जब आप जाते हो से आप डीमार्ट में गए या बिग बाजार में आप गए, तो आप देखते हो वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है रैक्स पे और उनका प्राइस डिस्प्ले होता है. तो जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है, ओके, आप बिग बाजार में गए, आप शॉपिंग मॉल में गए, आप डीमार्ट में गए, जब प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है विद अ प्राइस टैग, दिस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. दिस इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. जब आप प्रोडक्ट्स को लेते हो आपके बास्केट में और आप कैश काउंटर पे जाते हो और कहते हो कि भैया मुझे ये सारी चीजें खरीदनी है, दिस इज एन ऑफर. और फिर भैया आपका बिल देते हैं और कहते हैं इतने पैसे दो और प्रोडक्ट्स को लेके जाओ, विच विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेंस. So displaying goods at a supermarket is an invitation to an offer. हाँ, कल जाके अगर आपने 10 चीजें बास्केट में डाली है, शॉपकीपर अगर चाहे, यूजुअली होता नहीं है, बट लीगली वो कह सकता है आई विल नॉट सेल यू दिस प्रोडक्ट, इट वॉज ओनली फॉर शोकेस पर्पस. ये अभी अलाउड नहीं है. आप बाकी की 9 चीजें लेके जाओ, बाकी की 9 चीजों का दाम 1000 रुपए है. Getting this? So whenever products are displayed with a price tag, it is an invitation to an offer. और ये सारे products में से आप कुछ चीजें लेते हो और आप ऑफर करते हो to buy them. And then when the bill amount is told to you, you are accepting it. Getting this or no, my dear friends? Yes. तो यहां पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी नजर आ रहे होंगे. मैंने पहला एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको दिया है. अरे सब कुछ क्यों हाईलाइट हो जा रहा है? सो जब कंपनीज जाते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, प्रोस्पेक्टिस देते हैं, इट इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज जैसे सुपरमार्केट्स, एग्जाम्पल बिग बाजार और डीमार्ट. ऑक्शन सेल का एडवर्टीजमेंट देना इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. एंड कोटेशन ऑफ प्राइजेस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी. आपको मालूम है अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है, आप कोटेशन मांगते हो. व्हेन यू आस्क फॉर अ कोटेशन, कोटेशन इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. आपको अलग अलग शॉप से कोटेशन मिलता है एंड देन आप किसी एक शॉपकीपर के साथ डील फाइनल करते हो. सो यू टेल हिम आई एम रेडी टू बाय दिस एंड देन ही गिव्स यू, दैट वुड बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, आज आप लोगों का होमवर्क होगा टू फाइंड सर्कमस्टेंसेस वेरिन यू फाउंड इट वाज एन इन्विटेशन टू एंड ऑफर. ये आपका होमवर्क है. ठीक है, and now I'm giving you time to write this particular example on a stick note and stick it over here. So you can write down this example, after which I will conclude today's class. आज इतने दिनों में, आज 10th डे, आज मुझे लगा कि मैंने कुछ तो पढ़ाया है, अदरवाइज बहुत टाइम पास होता है. आई थिंक आई विल फॉलो दिस फ्लो
always till the last day of our class, because very good, Meet. Meet ने कहा है tender is also an example of an invitation to an offer. I'm so proud of you, Meet. Impressed. Good. सुनो ना मेरी बात. Please behave in this disciplined manner every day. ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा. सही समय के अंदर we will be able to complete the class. Otherwise, we will just lag behind in the portion और फिर 80 क्या 100 घंटों में भी हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा. इनफैक्ट टुडे आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड कि कुछ तो हमने सीखा है. आई थिंक दिस माइट बी द सेम थिंग दैट यू माइट बी फीलिंग. कोई कह रहा है मैम कारगिल के केस में भी एडवर्टीजमेंट हुआ है. सुनो मेरी बात, एडवर्टीजमेंट वाज नॉट रिलेटिंग टू बाइंग दैट प्रोडक्ट. ओके, हम कह रहे हैं आप बाय कर लो. ओके, और एडवर्टीजमेंट के द्वारा वी वर गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एट लार्ज. ठीक है बेटा. कौन बेचारा है? विकास, आपका जवाब मैंने नहीं पढ़ा है क्या? ठीक है, कल मैं सारे वी से चालू होने वाले बच्चों का नाम का ही जवाब लूंगी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. सो विकास, फिर आप जल्दी जल्दी आंसर कर लेना. ठीक है, क्योंकि अभी करंटली मैं फर्स्ट 20 या 25 किड्स का नाम ही पढ़ पाती हूं, ज्यादा बच्चों का नाम नहीं पढ़ पाती हूं. इफ आई स्टार्ट रीडिंग द नेम ऑफ ऑल द 1350 स्टूडेंट्स, ऐसी क्लास खत्म हो जाएगी, है ना? क्या आपने लिखना चालू किया है? Please start writing this particular point. I'll play a song for you. आप लोगों ने लिख लिया? उसके बाद आई जस्ट कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे एंड देन सॉन्ग प्ले भी नहीं हो रहा है. सॉन्ग भी नहीं चाहता है कि मैं प्ले हूं. ऐसे ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को.